Hello everyone, in this video we are going to discuss some most important MCQs from chapter 1 real numbers class 10th mathematics, and these MCQs are also PYQs. PYQ means previous year questions. The first question is, this was there in 2024 CBSE board exam. A is equal to 2 raised to power 2 multiplied by 3 raised to power x. B is 2 raised to power 2 multiplied by 3 multiplied by 5. And C is 2 raised to power 2 multiplied by 3 multiplied by 7. And the LCM of A, B and C is 3780. Then x is equal to, x की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 0 होगी. हाउ वी कैन फाइंड आउट. अब हमने पढ़ा था कि जो LCM होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ all the factors involved in the prime factorization of the given numbers and with their which power, with their highest power. So first of all we will do the prime factorization of this LCM. This is 3780. Let's do its prime factorization. 3780. It will go with 2 as it is a even number. 2 ones are 2, 1 left. 2 8s are 16, 1 left. 2 9s are 18, and this will be 0. Thus again it will go with 2 9s are 18, 2 4s are 8, 1 left, 2 5s are 10. It is divisible by 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 left, 3 5s are 15. Again, as the sum of digits is divisible by 3, this is 3 plus 1 4 plus 5 9. So again it is divisible by 3. This is 3 1s are 3. जहाँ पे ध्यान से करना है, यहाँ पे हमें जो 1 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, हमें 2 डिजिट्स इकट्ठे लेने पड़ेंगे. और जब भी हम 2 डिजिट्स इकट्ठे लेते हैं तो हमें बीच में 0 लगानी पड़ती है. 3 5s are 15. Again it will go with 3. Yes, 5 plus 1 is 6. It is divisible by 3. 3 3s are 9. 1 left. 3 5s are 15. Now it is not divisible by 3. We will move on. Next prime number, that is 5. 5 7s are 35. 7 1s are 7. What is the prime factorization of this number? This is 2 raised to power 2 multiplied by 3 raised to power 3 multiplied by 5 multiplied by 7. और इन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पहले से ही गिवन थी. ऑब्वियसली इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमें गिवन है तो एलसीएम क्या रहा होगा, इनके जितने भी प्राइम फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व थे, इन तीनों में उन सबकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट. तो जहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, दिस इज करेक्ट. 5 इज 1 टाइम्स. 7 इज अगेन हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इज 1. द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इज 1. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3. यहाँ पे 3 की पावर 1 थी, यहाँ पे 3 की पावर 1 थी. यहाँ पे 3 की पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे तो अगर 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 3 की पावर कितनी थी, 3. तो देयरफॉर द करेक्ट वैल्यू ऑफ x इज 3. The option C is the correct answer. Now let's do the next one. In this question we have HCF of 2520 and 6600 is 40 and LCM of 2520 and 6600 is 252 multiplied by K. हमें क्या गिवन है, 2 नंबर्स का HCF भी गिवन है और 2 नंबर्स का LCM भी गिवन है. बट जो HCF है वो तो हमें एग्जैक्ट गिवन है, बट LCM कैसे गिवन है, 252 multiplied by K. What we have to find out? We have to find out the value of K. Very simple MCQ. How we can find out? Which result we have to use है, HCF multiplied by LCM is equal to product of 2 numbers. What is the HCF? 40 and the LCM is 252 multiplied by K, and the product of 2 numbers will be 2520 multiplied by 6600. अब यहाँ से K की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों K से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. K विल बी 2520 multiplied by 6600 divided by 40 multiplied by 252. This will go with 252. 10s are 0 goes with 0. Now it is divisible by 4. 4 1s are 4. 2 left. 4 6 are 24. 2 left. 4 5s are 20 and 0. This is 1650 should be the value of K.
Now let's discuss the next one. In this third MCQ we have the LCM of the smallest odd prime number and the greatest two-digit number. The LCM of smallest odd prime number and the greatest two-digit number. First of all, which one is the smallest odd prime number? The smallest even prime number is 2 and 2 is the single prime number which is even. Rest all prime numbers are odd number. Smallest composite number is 4. Now the question is the smallest odd prime number. The smallest odd prime number is 3 and the greatest two-digit number. Which one is the greatest two-digit number? The greatest two-digit number is 99. But we have to find out. We have to find out their LCM. In this question you can see कि जो 3 है वो 99 का क्या है फैक्टर और 99 जो है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है. इसका मतलब 99 3 का मल्टीपल है. जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर बन जाए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल बन जाए, एक फैक्टर हो और एक मल्टीपल हो, तो इन क्वेश्चंस में बड़ा ही सिंपल सा रूल है. जो छोटा वाला नंबर होगा वो HCF और जो बड़ा वाला नंबर होगा वो LCM. क्या होता है इन क्वेश्चंस में? जो HCF होता है वो कौन सा नंबर होता है? जो इन दोनों में फैक्टर है. 3 इज द फैक्टर ऑफ 99, तो HCF विल बी 3 एंड 99 इज द मल्टीपल ऑफ 3. तो व्हाट विल बी द LCM? द LCM विल बी 99. B option is the correct answer. Now let's see the next one. The ratio of HCF and LCM of the least composite number and the least prime number. रेशियो निकालते टाइम आपने एक चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना है, जो आपके पास पहले लिखा गया है वो आपने ऊपर लेना है और जो बाद में लिखा गया वो अपने डिनोमिनेटर में लेना है. द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM, इसका मतलब HCF should be the numerator and LCM should be the denominator of, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं HCF should be the first term and LCM should be the second one of the least composite number and the least prime number. What is the least composite number? सबसे छोटा composite number. It is not 1, it is 4. The least composite number is 4 and the least prime number is, which one is the least prime number? The least prime number is 2, right? अगर सबसे छोटा composite number देखें तो वो 4 है और सबसे छोटा जो prime number है वो कौन सा है? 2. 1 is neither prime nor composite. The ratio of LCM and HCF. अब आप इन दोनों नंबर्स को देखोगे तो आपको एक चीज़ फिर से वही है यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी कि एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है? मल्टीपल. 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज फैक्टर ऑफ 4. तो जहाँ पे भी हमारे पास जो HCF आएगा इन दोनों नंबर्स का क्या आएगा? जो इन दोनों नंबर्स में छोटा नंबर है जो फैक्टर है. HCF विल बी 2 एंड व्हाट विल बी द LCM? द LCM विल बी 4. Now we have to find out the ratio of HCF to LCM. HCF is to LCM. So this will be 2 is to 4. In the least form we can write it as 1 is to 2. The correct answer is 1 is to 2, not 2 is to 1. Okay. The next MCQ is, in this MCQ we have 3 alarm clocks rings their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? उन्होंने बोले 3 अलार्म क्लॉक्स हैं. जो फर्स्ट है वो 20 मिनट्स के बाद अलार्म को क्या करती है? रिपीट करती है. Alarm clocks rings their alarm at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes, right? अब आपने बताना है कि ये अगर 12 नून पे, किस टाइम पे? 12 नून पे इकट्ठी एक बार बीप करी थी तो इसके बाद ये फिर से कब बीप करेंगी टुगेदर? हाउ वी कैन फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन? पहले तो आप ये बताएं कि हमें HCF निकालना पड़ेगा कि LCM निकालना पड़ेगा? हमें LCM निकालना पड़ेगा क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ से आगे जाना होता है उससे ग्रेटर चाहिए होता है.
तो हम क्या निकालते हैं, मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, राइट। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20. इट विल बी 2 raised to power 2 into 5. Now 25 is 5 raised to power 2 and 30 is 5 into 2 into 3. Now what is the LCM? LCM will be the product of all the factors, all the prime factors involved with their highest power. Which prime factors do we have? 2 raised to power 2 multiply by 3 multiply by 5 raised to power 2. यहाँ पे हमें पता है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, एक 2 एक 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाता है, 10. तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स ही 5 है, तो हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, 2 zeros. दिस विल बी 300. और ये क्या थे हमें गिवन, मिनट्स थे, तो ये भी क्या आएगा 300 मिनट्स हमारे पास यहाँ पे मतलब ये जो अलार्म्स हैं फिर से कितने मिनट्स के बाद रिंग करेंगे, कितने मिनट्स के बाद इकट्ठे बीप करेंगे, 300 मिनट्स के बाद. और उन्होंने हमसे क्या पूछा था, टाइम. अब हम इस इन मिनट्स को किस में चेंज करते हैं, आवर्स में. टू चेंज दैम आर इनटू आवर्स वी नीड टू डिवाइड देम बाय 60. इट विल गिव्स अस 5 आवर्स. अगर ये 5 आवर्स के बाद फिर से बीप करेंगे टुगेदर, तो 12 नून के बाद कौन सा टाइम आएगा आपके पास, द टाइम विल बी 5 PM. द नेक्स्ट MCQ इज, in this MCQ we have the LCM of two numbers is 2400. Which of the following cannot be their HCF. आपने बताना था. एक तो अपने जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें कैन नॉट लिखा होता है, नॉट लिखा होता है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने होते हैं. बेटा देखो 90% जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है ना वो स्टेटमेंट में ही होता है. आपको स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन में वो क्या आपसे डिमांड कर रहा है, वो चाहता क्या है एग्जामिनर आपसे, वो आपसे क्या पूछ रहा है, राइट. द LCM ऑफ द टू नंबर्स इज 2400. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF. आपने बताना है कि इसमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता. अब हमें एक रिजल्ट तो पता है कि जो HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि LCM इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ HCF. अब इन दोनों इस नंबर का आपने बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 2400 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा विद रिमाइंडर 0. 300 तो कर रहा है, 400 भी कर रहा है, 600 भी कर रहा है, 500 नहीं कर रहा. 500 के साथ जब आप 2400 डिवाइडेड बाय 500 करोगे, यहाँ से जीरोस तो कट जाएंगे, बट 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5. इसका मतलब 500 is the correct answer. The next MCQ is the LCM of smallest 2-digit number and the smallest composite number. Which one is the smallest 2-digit number? The smallest 2-digit number is 10. And which one is the smallest composite number? The smallest composite number is 4. अब आपने बताना था LCM of smallest 2-digit number 10 and 4. अब 10 और 4 का अपने LCM निकालना है, तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10? 2 into 5. व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4? दिस इज 2 का स्क्वायर. LCM विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व, दैट इज 2 raised to power 2 with their highest power multiplied by 5. This is 4 5s are 20 will be the next. The next MCQ is, in this MCQ we have the sum of the exponents of the prime factors of the prime factorization of 196. First of all you have to do the prime factorization of 196. फिर इसमें प्राइम फैक्टर्स के जितने भी एक्सपोनेंट्स आएंगे आपने उसका क्या निकालना था, सम. फर्स्टली लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196. इट इज इवन नंबर डिविजिबल बाय 4. 2 9s are 18, 1 left, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 1 left, 2 9s are, it will go with 7, 7 1s are. What is the prime factorization of 196? It is 2 square multiplied by 7 square.
अब आपके पास ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, आपने क्या निकालना था, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। ये जो इसके एक्सपोनेंट्स थे इनका सम निकालना था। द आंसर विल बी 2 + 2 that is 4. B is the correct answer. The next one is the smallest irrational number by which root 20 should be multiplied so as to get a rational number. आपने बताना था कि रूट 20 को ऐसे सबसे छोटे किस इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो रिजल्ट आ जाए वो कौन सा नंबर आ जाए, रैशनल नंबर। अगर रूट 20 है तो हमें पता है कि रूट 100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब रूट 100 बनाने के लिए हमें 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। बट यहाँ पे तो रूट 20 था, अगर हम रूट 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नो, हमारे पास ऐसा कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ही नहीं है। हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बोलते हैं कि अगर बेस को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उनकी पावर्स क्या होती हैं, सेम। रूट 20 कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। ये दोनों आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकते थे जब इनके एक्सपोनेंट्स क्या होते, सेम होते। रूट 20 कैन बी मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 ओनली, राइट। इट विल गिव्स अस रूट 100 विच इज इक्वल टू 10, अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे 5 भी था और रूट 5 भी था, आंसर इज रूट 5। और एक हिंट और भी था यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। आपने रैशनल नंबर नहीं देना था आंसर, आपने कौन सा नंबर देना था, इरेशनल नंबर, राइट। अब क्या रूट 20 भी आंसर हो सकता था? रूट 20 अगर हम बोले रूट 20 मल्टीप्लाइड बाय रूट 20 इट गिव्स अस रूट 400। इट इज़ अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट उन्होंने कौन सा नंबर निकालने को बोला था? इट इज़ अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर 400 एंड आंसर इज 20। बट उन्होंने हमें कौन सा ऐसा नंबर निकालने को बोला था, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। तो रूट 20 और रूट 5 में से स्मॉलर कौन सा है, रूट 5। तो करेक्ट आंसर विल बी रूट 5। द नेक्स्ट इज, okay, let's discuss these last two questions. Two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is their HCF? What is the HCF of these numbers? उन्होंने बोला है यहाँ पे दो नंबर्स गिवन नहीं है, आपको दो नंबर्स की क्या गिवन है, रेशो गिवन है, एंड देयर LCM इज ऑल्सो गिवन। व्हाट इज द LCM? 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स? आपने दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, HCF निकालना है। हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ रेशो में दे रखी होती है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है यहाँ से कोई ना कोई दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर रहा होगा जो कैंसिल हो गया होगा जब हमने उनको डिवाइड किया था। तो उनकी लीस्ट जो फॉर्म थी वो क्या बच गई, 2:3। अब वो कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है हमें नहीं पता, वो कॉमन फैक्टर 10 भी हो सकता है, मतलब हो सकता है नंबर 20/30 हो सकता है नंबर हमारे पास 20 भी हो सकता है, दैट इज़ 40/60 हो। हमें नहीं पता वो नंबर कॉमन फैक्टर कितना रहा होगा, तो इसलिए हम उस कॉमन फैक्टर को क्या कंसिडर कर लेते हैं, x कंसिडर कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई रेशो हमें गिवन होती है तो हम बोलते हैं दोनों के साथ x ले लो। तो x क्या रहता है, एक कॉमन फैक्टर जो इनमें से कैंसिल हो गया था। तो टू नंबर्स विल बी बी 2x एंड 3x। हमारे पास नंबर्स क्या बन जाएंगे, 2x और 3x। x को हमने क्या ले लिया, जो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर था। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें इसका LCM दिया हुआ है 180 और हमें क्या निकालना है, HCF। हमें पता है फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। अब हमें यहाँ पे HCF तो नहीं दे रखा, वी विल राइट इट एज इट इज एज HCF। व्हाट इज द LCM गिवन, 180, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 3x। इट विल बी 2 3 6x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, HCF मल्टीप्लाई बाय 180। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपके पास 2 और 3 दो कौन से नंबर्स हैं, 2 और 3 आपके पास दोनों प्राइम नंबर्स हैं और x इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो क्या HCF ऑफ
2x और 3x का HCF कितना बनेगा? x ही बनेगा, राइट। अब अगर हम HCF की जगह पे x ले लेते हैं तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? लेट्स डू इट। दिस इज x मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 180x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। हम x को डिवाइड नहीं करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 180x इज इक्वल टू 0। हम वेरिएबल के साथ कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम वेरिएबल के साथ डिवाइड करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 कभी भी डिनोमिनेटर में आता नहीं है। इसलिए हम यहाँ से इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? वी कैन टेक 6x कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट? What is left? We are left with x minus this is equal to 0. अब यहाँ से हमारे पास क्या? From here we will get two cases. One is either this is equal to 0 और this is equal to 0. दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उसमें से एक नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो either 6x is equal to 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 आ रही है। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। हमारा HCF भी कितना था? x ही था। आपको ये समझ में आया था HCF x क्यों होगा? क्योंकि दो नंबर्स की रेशो थी 2:3। उसमें से एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था जो पहले से कट चुका था। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना ले लिया था? x। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को एक और कोई मेथड है इसको करने का? लेट्स ट्राई। अगर हमें दो नंबर्स की रेशियो जो दे रखी थी वो दे रखी थी 2:3 और हमें उनका LCM कितना दे रखा था? 180। तो हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? नंबर्स विल बी 2x एंड 3x, राइट। अब हमें निकालना क्या था इन दोनों नंबर्स का? HCF। अब हमें पता है कि इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा हमारे पास? HCF विल बी x और यहाँ पे हमारे पास LCM कितना था? 180। अब आगे क्या करेंगे? अगर आपके पास HCF x है तो इनका LCM कितना आएगा? यहीं से LCM निकालना है। LCM में हम क्या लेते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व विद द हाईएस्ट पावर। कौन कौन से नंबर्स हैं? एक 2 है, एक 3 है और एक कौन सा नंबर है? x। तो देयर LCM विल बी 6x। अब हम 6x को इक्वेट कर देंगे 180 के साथ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 और ये हमारा क्या आ जाएगा? HCF। HCF विल बी 30। आप इस तरह से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। दिस इज द लास्ट वन। Two positive integers a and b can be written in the form of what is how a can be written? X cube y cube and what about b? B is x multiplied by y cube where x and y are prime numbers. x और y कौन से numbers हैं? Prime numbers हैं। आपने इनका क्या निकालना है? LCM। LCM क्या होता है? The product of all the prime factors involved with their highest powers. तो यहाँ पे दो ही prime factors हैं x और y। x की highest power 3 और y की भी हाईएस्ट पावर 3। तो LCM विल बी x क्यूब y क्यूब। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द HCF तो HCF क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद देयर लीस्ट पावर्स। तो विच आर द कॉमन फैक्टर्स है? द कॉमन फैक्टर इज x और x की स्मॉलेस्ट पावर 1 और y की 3। दिस विल बी द HCF, राइट। ये सारे MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये पिछले कुछ सालों के इम्पॉर्टेंट मैंने बोर्ड के क्वेश्चंस के जो पिछले कुछ सालों में बोर्ड के क्वेश्चंस में आए हैं वही MCQs थे। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा एंड होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।